हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे आपके ईवीएस की एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी चैप्टर 14 बाजफास फॉर्म। तो बाजफास फॉर्म में बाजफा, उसके मम्मी, उसके पापा सब लोग साथ में काम करते हैं और वो लोग ऑनियन क्रॉप लगाते हैं। ये जगह है बिलवनक्की विलेज इन कर्नाटका। ठीक है, तो चलिए बाजफा के मुंह से ही सुनते हैं कि आखिर बाजफास फॉर्म में ऐसी क्या बात है जो वो हम सबको को शेयर करना चाहते हैं। Hey, I am Vasva. My father is a farmer. We lived in Velkana village in Karnataka. It is a month of July. Like every year, Appa, my father is preparing the field to show the onion crops. Here, there are so many things to be done at this time. To help him, I too go to the field with Appa. Appa, you know, my father. In the last few days, Appa has been used the khunti. Khunti is an iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. So let's learn about this in this chapter. Okay friends, I believe that you will going to enjoy my farm and whatever we are doing, that all the things. Come with me. The first step, you know that loosen the soil. Now showing the seeds. This year also my father will show onion seeds in the field. The bullocks will pull the courage and Appa will walk behind them, sprinkling the seeds. I also like to do this just like my Appa. But Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at the regular distance. That is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place, but not. I'm sure that I learned how to drop the seeds. But anyway, I must wait till I am a little older to be able to do this properly. So, let's see minutely what we are doing and why we are showing the seeds in a distance. The sprouts appears. It is now 20 days. Nice. The seed were shown. The onion plants have started to sprout. Along with the onion plants, weeds have also came up. Do you know what is wheat? Wheat grows in the fields and garden without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the weathers, waters and fertilizers. If there were too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. Ha ha ha! Hey, was my son, see, growing the plant. I am happy to see the plants good, as you are also happy. They are tall enough to reach your knees. See, the leaves have started turning yellow and drab. This means that the onions are ready to be taken out. So, feeling very happy, my dear son. Where are you? Where are you, Baswa? Come here, see. Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at right time. If they were late, the onion will rot in the ground itself and all our hard work will waste. Oh, Appa, Amma, I'm here. Serve the idli for me. बाजफास फॉर्म्स। तो अब
आपने जान लिया कि बाजवा के पापा क्या काम करते हैं, उसकी मम्मी क्या काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर में, जहाँ पर स्टेप्स ऑफ क्रॉपिंग से सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी चैप्टर में है कि वो स्टेप्स क्या हैं क्रॉपिंग के। तो चलिए देखते हैं, किसी भी क्रॉप को बीज को लगाना और उसमें से क्रॉप्स गेन करने में हमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कि किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी सीड को आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाजवास फॉर्म में हम ऑनियन को कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, लूजन द सॉइल, जो आप यहाँ देख रहे हैं, लूजन द सॉइल, दिस वन। उसके बाद आप देखेंगे शोइंग द सीड्स, द इम्पॉर्टेंट। लूजन द सॉइल मतलब सॉइल को लूज करना है, इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे, आप ध्यान में रखिए। लूजन द सॉइल द फर्स्ट, showing the seed is the second, and third is the removing the weeds, then fourth the cutting the large plants. Okay, तो removing the seeds and cutting the large plant एक साथ ही हम देख लेंगे कि क्यों ज़रूरत होती है। Then taking onions out, कि हार्वेस्टिंग क्यों ज़रूरत है, इसको एक वर्ड में हम ऐसे बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। Then packing the onion sack, कि ऑनियंस को सैक में उन्होंने पैक कैसे किया। इस बीच में एक पॉइंट है जो छूटा है, दैट इज द इरिगेशंस और द वाटरिंग द प्लांट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी चैप्टर शोइंग द सीड से। तो जैसे आप देखें, बाजवा यहाँ जिक्र कर रहे थे एक तरह के यंत्र की, जिसे उसने खुंती कहा, एन आयरन रॉड। तो ये आयरन रॉड होती है जो डिगिंग करने का काम आता है, तो उसे हम खुंती बोलते हैं। और हमारे इलाके में इससे हम इस तरह से देख सकते हैं, नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, इसे हम कुल्हाड़ी भी बहुत बार बोलते हैं। नहीं, कुल्हाड़ी वो ठीक नहीं होता है, गैता वगैरह। तो ये यूज होता है सॉफ्टन द सॉइल। अब सवाल आता है कि ये क्या है, तो ये आपके चैप्टर में है इलेज। ये ऑनियन क्रॉप्स को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे हम अपने इलाका में ज्यादातर बैठी और या कभी कभी उसको हम शार्प नाइफ के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है दोनों अलग अलग हो जाती है। हमारे वेस्ट बंगाल में मच्छी बेचने वालियां भी इसको यूज करती हैं मछली काटने के लिए। तो चलिए, सॉफ्टन द सॉइल हमें क्यों जरूरी है, जो हम खुंती से करते हैं या इस तरह के गैते का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट करना सॉइल को, मतलब जो मिट्टी में बड़े बड़े फंगस लगे हुए होते हैं, उन फंगस को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम ऊपर ऊपर अगर उसको सॉफ्ट करते हैं, या तो जो मोटे मोटे ढेले हैं, पत्थर हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं सॉइल से, मगर अंदर तक अगर हम डिग नहीं करें तो अंदर इस तरह की फंगस होती है। इसलिए मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है कि उसको बहुत अंदर तक डिग किया जाए, ताकि जो मिट्टी का पोर्शन है उसमें इस तरह से जो फंगस ग्रो करते हैं मिट्टी के अंदर, वो सारे सन में हाईलाइटेड हो और जल्दी से जल्दी वो सूख जाए और मिट्टी हमारा तैयार हो जाए। क्योंकि ये जब तक फंगस हमारे अंदर में रहते हैं मिट्टी के अंदर, तब तक हम जो भी सीड उसमें डालेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ किस तरह से जड़ों तक ये फंगस फैल जाते हैं, और बैक्टीरियाज भी इसके अंदर होते हैं, जो कि हमारे अगर फंगस हम पहले से ही मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार नहीं करेंगे, सॉफ्ट नहीं करेंगे, और उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको नहीं निकालेंगे, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है बाद में। कभी कभी पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके बाद मर जाता है, बाद में देखा जाता है कि उसके जड़ों में या तो बैक्टीरिया थी, या तो कोई कीड़े लग गए थे, या तो फंगस हो गया था। तो ये कुछ यंत्र हैं, या तो आप टूल्स बोल सकते हैं, जिसे हम यूज करते हैं डिगिंग के लिए। और जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं कभी कभी अंदर में, तो हम लोग सावल वगैरह यूज करते हैं। तो ये आपके वो टूल्स हैं। यहाँ पर गार्डनिंग टूल्स है जो तरह तरह के हैं, जैसे एक्स है, गार्डनर क्लोव्स है, फ्लावर पॉट्स है, ग्रासेस है, बूट्स है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। आप यहाँ पर अर्थवर्म भी देख रहे होंगे। अर्थवर्म भी हमारे एक टूल है। बहुत बार बहुत खेतों में जानबूझकर भी अर्थवर्म को छोड़ा जाता है, ताकि वो सॉफ्ट करे सॉइल को और फर्टिलाइज करे हमारे सॉइल को। कुछ फर्टिलाइजर्स है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कॉमन टूल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग के लिए या फार्मिंग के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सॉइल की लेयर्स दिखाई गई है। ऑर्गेनिक सरफेस है, सब सॉइल से, देन सबस्टेम है, एंड बेड रॉक है।
तो हमारी जो मैं बोल रही थी ना कि नीचे तक आपको डिग क्यों करना पड़ता है, देखिए इसके जो रेशे हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं, वो सब सॉइल तक इतनी दूर तक आती है। अगर हम इन रेशों को जड़ से डिग करके नहीं निकालेंगे और तब तक हमारा ऊपर से तो सॉफ्ट हो जाएगा सॉइल, मगर क्या होगा कि नीचे में ये जड़ें रह जाती है और जिसकी वजह से ये जड़ें फिर हमारे नॉर्मल क्रॉप्स जो हम लगा रहे हैं उनके जड़ों को जोर से पकड़ लेती है और उनमें भी बैक्टीरिया या फंगस फैलना शुरू हो जाता है, तो वो ग्रो नहीं कर पाता है। ये हमारा फंगस का स्ट्रक्चर जो सॉइल के अंदर फुटेज ली गई है और देखिए इसके चारों तरफ कैसे जड़ों में फंगस लगी हुई है और इस वजह से प्लांट मर जा रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहे, येलोइश उसमें एक फ्लेवर आने लगता है। तो सॉफ्टन द सॉइल सबसे बेसिक चीज है जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है शोइंग द सीड्स। अब आप सीड को शो करेंगे, मतलब उसको लगाएंगे, तो उसकी एक नियम होती है। सबसे पहला कि एक डिस्टेंस उसको मेंटेन करना है। आपको बासवा ने भी बताया कि हम लोग एक डिस्टेंस में मेंटेन करते हैं। बच्चों के हाथ से जब लगाते हैं तो एक साथ एक जगह पे 4-5 सीड गिर जाती है, मगर नहीं, उसको डिस्टेंस मेंटेन करके शो करना बहुत जरूरी है। दूसरी, आपकी सॉइल जो है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, उसमें ढेला होगा, अगर मिट्टी का गोला होगा, बड़ा सा पत्थर उसमें ढेर सारे जमे हुए होंगे, पत्थरों को, कंकड़ों को नहीं निकाला गया होगा, तो भी आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब सीड जो है वो पत्थर के ऊपर जाके गिर जाएंगी और फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो each seeds having the tiny plants, ये तो आप सभी जानते हैं। एक सीड के अंदर में एक छोटा सा बेबी सीड होता है और उसको बचाने के लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब उसको सॉइल में हम डालते हैं तो ये छोटा बेबी प्लांट को हम ग्रो करने के लिए सॉइल, वाटर, सनलाइट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो करे। फिर ये अपना शेल को तोड़ के, जैसे हम सीड कोट करना है, तोड़ के वो बाहर आए और ग्रो करना शुरू करे और ग्रो करके इस तरह से बड़ा प्लांट बन जाए और हैप्पी प्लांट बन जाए। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है सॉइल, देन वाटर एंड सनलाइट। वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये तीनों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो अब तक हमने सॉइल तैयार कर लिया, सीड डाल दिए डिस्टेंस में। अब नेक्स्ट क्या होगा? यस, नेक्स्ट है वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हमने डिस्टेंस में लगा दिया और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। एक सीड 1 सेंटीमीटर में लगाया तो दूसरा सीड 10 सेंटीमीटर में लगाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये सीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा प्लांट है। अगर बड़ा प्लांट है तो उसके लिए आपके लिए गैप्स ज्यादा होंगे, अगर वो छोटा प्लांट है तो आप छोटे छोटे गैप्स में भी लगा सकते हैं। जैसे गेंदे के फूल का गाछ अगर लगा रहे हो तो वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में लगाया जा सकता है, इनका भी और जुबली भी। मगर अगर वो आपका मान लीजिए आप चंद्रमल्लिका लगा रहे हो तो वो थोड़ा ज्यादा जगह लेगा, है ना, तो उसके लिए आपको ज्यादा जगह चाहिए। सूर्यमुखी का फूल लगा रहे हैं तो वो भी थोड़ा ऊंचा तक ग्रो करता है, शर बन जाता है वो, तो उसके लिए भी डिस्टेंस में आपको सीड लगानी पड़ेगी। तो हर चीज की सीड नहीं मिलती, कुछ कुछ हमें छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं और वो प्लांट्स को ही हम ला के अपने घरों पे लगाते हैं और उसको भी डिस्टेंस में ही लगाना पड़ता है। चाहे हम सीड शो करें या छोटे छोटे प्लांट्स शो करें, तो वो डिस्टेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ प्रॉपर डिस्टेंस में लगाने के लिए आज के युग में बड़े बड़े फील्ड्स में और फार्म्स में इस तरह से जो ट्रैक्टर को भी यूज किया जाता है, जो वो खुदाई का भी काम करते हैं, सॉफ्टन द सॉइल भी करते हैं और डिस्टेंस में सीड को शो करने का भी काम करते हैं। तो अवॉइड टू मच वाटर। मान लीजिए आपने पेड़ तो लगा दिया, बीज तो लगा दिया, दोनों में से कुछ भी लगा दिया, मगर एक्सेस वाटर अगर आप उसमें डाल देंगे तो भी वो स्पॉइल कर जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा इरिगेशन, कितने अमाउंट में आपको पानी डालना है। अगर आपका प्लांट बहुत छोटा सा है तो इरिगेशन टाइप में उसको स्प्रिंकल वाटर ही दीजिए जब तक कि वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। अगर एक छोटा सा प्लांट में आप बकेट में लेके जोरदार पानी डाल दोगे तो वो प्लांट मर जाएगा, तो उसको स्प्रिंकल करना है वाटर छोटे प्लांट को। और डायरेक्ट प्लांट के ऊपर कभी भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो बेचारा प्लांट तो अकबका जाएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना सारा नदी मेरे ऊपर कहाँ गिर गया। तो कोशिश कीजिएगा प्लांट के ऊपर पानी नहीं देने के लिए, मगर प्लांट से कुछ डिस्टेंस में पानी देने के लिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो पानी
पीने के लिए इनकी जड़ें फैलना शुरू करती है कि वो डिस्टेंस में पानी होता है तो वो फटाफट वो पीने के लिए अपने जड़ों को फैलाती है और बढ़ाती है। आप ये भी नोटिस किए होंगे कि कुछ फ्लावर्स होते हैं, अगर उसको आप शेड में रख दो तो आप देखेंगे उसकी स्टेम ऑटोमेटिकली सूर्य की तरफ और किरणों की तरफ, लाइट्स की तरफ वो मूव करने लगती है, क्योंकि उसको सूर्य की किरणें चाहिए होती हैं और मूव करने लगती है। उसी तरह इनकी जड़ें भी पानी की तरफ मूव करती हैं और इसलिए वो तेजी से बढ़ने लगती है। मगर पानी आप उसके ऊपर डाल दोगे तो उनके लिए वो ओवर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखें, पानी पेड़ के ऊपर नहीं डालना है, थोड़े डिस्टेंस में डालना है ताकि वो आराम से उसको ग्रो करे और उसकी जड़ें भी फैले। और नियम के अनुसार पानी डालना, ये नहीं कि अभी सुबह भी पानी डाला, दोपहर में भी डाला। धूप में तो कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। सुबह और शाम का जो समय होता है वो सही होता है पानी डालने के लिए। मगर ये डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है, उसी के अनुसार आपको पानी डालना होगा और आप प्लान भी वैसा ही करना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं बहुत ज्यादा खाद दे देंगे, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे देंगे, बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो प्लांट फटाफट बड़ा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। उनको एक रेशियो में और एक प्लानिंग के साथ ही इनको पानी, खाद सब कुछ देना पड़ता है। एक्सेस होने से ये तुरंत मर जाते हैं। वीड्स, तो ये वीड्स के बारे में अभी बासवा के फादर आपसे बात कर रहे थे। बासवा ने बताया ये वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ये देखिए, ये जो मशीन यूज हो रही है वीड्स को हटाने के लिए, इस तरह से आजकल आधुनिक युग में बहुत सारी मशीनें यूज हो रही है वीड्स को हटाने के लिए। और बहुत बड़े बड़े फार्म में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे बासवा के मम्मी पापा खुद से वीड्स हटाने का काम कर रहे थे, तो बड़े फार्म में ये पॉसिबल नहीं भी होता है, इसलिए मशीनों की इस्तेमाल की जाती है। और ये अनवांटेड प्लांट्स है जो क्रॉप के साथ ही उगने लगते हैं, इनको हम वीड्स कहते हैं। इनको बचपन में ही नहीं उखाड़ा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें जुड़ी हुई रहती है छोटे छोटे प्लांट से, हमारे क्रॉप से। तो अगर हम उखाड़ते हैं तो हमारी क्रॉप्स भी उखड़ जाने की संभावना होती है। रिमूविंग द वीड्स, ये एक हमारा स्टेप है। तो अब है क्या कि रिमूविंग द वीड्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी जितनी फर्टिलाइजर्स है, वाटर है, वो सब कुछ ये लोग एक्सेस मात्रा में एब्जॉर्ब करने लगते हैं जो हमारे क्रॉप्स को चाहिए। तो हमारे क्रॉप्स को खाना, पानी सब कुछ कम मिलता है, इसलिए हमें उन्हें निकाल देना जरूरी होता है जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। वीड्स, a weed is a plant considered undesirable in a particular situation, a plants in the wrong place. Example commonly are the plants unwanted in human controlled settings such as a farmer fields, gardens, lawns and the park. तो ये weeds को निकालना बहुत जरूरी होता है। अब है लास्ट हमारा हार्वेस्टिंग। पैकेटिंग पे हम लोग फ्रॉम द मार्केट टू होम से पढ़ेंगे पैकेटिंग कैसे करना है, उसको सेव करके कैसे रखना है। अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए भी हम बहुत मशीनों का यूज करते हैं, बड़े तादाद में हार्वेस्टिंग करने के लिए। हार्वेस्टिंग है कि हमको सही समय पर क्यों क्रॉप्स काट देना चाहिए। अगर हम नहीं काटेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएंगे। What will happen if you're not able to cut the crops in the time? It will spoil, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा और फट जाएगा, और कुछ तो कीड़े खा जाएंगे या पक करके वो बुढ़े हो जाएंगे। तो सही समय पे नहीं निकालेंगे तो वो स्पॉइल होने लगेंगे। स्पॉइल तरह तरह से होते हैं, कभी कीड़ों की वजह से, एक्सेस वाटर की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की वजह से, ड्राई अप होने की वजह से। ओके, तो अलग अलग वे से वो स्पॉइल हो जाएंगे, मगर ये बहुत जरूरी है कि हम क्रॉप्स को क्या करेंगे, टाइम पे काटेंगे। If before that it is spoiled, what happened? काटने का पहले ही अगर स्पॉइल होगा तो क्या करेंगे? हमारा छोटू बाबा को पूछ रहे हैं, देखिए जरा। तो करना क्या है? वेरी सिंपल प्रोसेस। We use pesticides. ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। Insecticides are the types of pesticides that used to specify target and kill the insects. तो इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो एक तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें से इंसेक्टिसाइड भी हैं और कुछ वीडिसाइड्स भी होते हैं। ओके, मतलब कुछ लोग कीड़ों को मारने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग वीड्स को मारने के लिए भी काम करते हैं। मगर हमारे नॉर्मल छोटे गार्डन्स में हम लोग वीडिसाइड्स बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हम वो हाथ से ही उखाड़ लेते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स डालने के बहुत सारे नियम होते हैं। हम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स जो यूज करते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं, जो हम लोग हार्बल रीति से यूज करते हैं, और कुछ केमिकल्स भी होते हैं। ओके, सम insecticide insculls the nails ball, ants killers and the webs killers
herbicides are used to kill the undesirable plants or the weeds. Some herbicides will kill all the plants they touch, while other are designed to target one species. तो ये दोनों अलग अलग चीजें, कुछ weeds को खत्म करने के लिए यूज की जाती है और कुछ इंसेक्ट्स को। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर जमीन को फर्टिलिटी देने के लिए जो यूज करते हैं, जो मैन्यूर यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं। यहाँ वीड्स के बारे में थोड़ा डेफिनेशन हम देख लेंगे। वीड्स इज अ प्लांट कंसिडर undesirable in a particular situation, a plant is in wrong place or the unwanted plants. Pesticides क्या होते हैं? Insecticides are the type of pesticides that is used to kill the insects. तो इंसेक्टिसाइड एक टाइप है पेस्टिसाइड्स का जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को किल करने का काम करते हैं। और वीड्स को किल करने के लिए जो हर्बिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में आगे भी बता सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? अ फर्टिलाइजर इज अ केमिकल दैट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। इट इज यूज्ड टू रिप्लेस द मैन्योर सॉल्ट्स टेकन बाय द प्लांट्स और रिमूव बाय द रेन। जो भी मैन्योर्स होता है उसको अगर रिमूव हो जाता है पानी से, एक्सेस वाटर से, तो उसके बदले में जो हम फर्टिलाइजर देते हैं वो उसको वो मैन्योर्स वगैरह खाना का चीज, मैन्योर्स मतलब खाना, उसको मिलता है। कॉमन फर्टिलाइजर आर द अमोनिया, मैन्योर आर द एनिमल वेस्ट। तो एनिमल वेस्ट में हमारा वो गोबर और जो गॉट का पॉटी ये सब कुछ आ जाता है। फर्टिलाइजर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारा सबसे ज्यादा जो यूज हम करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, जो अपने छोटे गार्डन में भी यूज करते हैं, दैट इज द कंपोस्ट वन। ठीक है, ब्लड मील और द बोन डस्ट हम इसको बोल सकते हैं, बोन मील, दैट इज द बोन मील। और मिक्सचर आता है जो कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिला के होता है। आपको अजीब लगेगा कि बोन डस्ट भी यूज किया जाता है स्पेशली गुलाबों के लिए। ये जो आपके स्टेम्स है उनको काफी स्ट्रेंथ करती है। ग्रीन मेन्यूज जो होते हैं वो ज्यादातर लीफी होते हैं। जैसे आपने सूखे पत्तों को जमा किया और उसे काफी दिन तक एक पिट में रखा, थोड़े से दही या किसी ऑर्गेनिक चीजों को मिला के उसको सड़ा दिया उस पिट के अंदर, और कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद वो खाद बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों से अपनी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, पोटेशियम है। तो स्टोरिंग द क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग ग्रेन are the usually dried before using the store because the moisture encourage the growth of microorganisms. तो अब स्टोर ढंग से नहीं करेंगे, टाइम पे नहीं करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक यूनाइटेड वर्ड है फॉर द फंगस, बैक्टीरिया एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। दे आर देन स्टोर्ड इन द मेटल और अर्थन कंटेनर्स। तो ये मेटल्स में या तो फ्रॉम द मार्केट टू होम में आने से पहले बासफास फॉर्म में जो सबसे प्यारी सी चीज है वो है आपकी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। क्योंकि जब हम लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं हार्वेस्टिंग की, तो उसमें हमें मिलता है कि लोग जश्न मनाते हैं जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है। तो चलिए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पॉपुलर फेस्टिवल के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। आप या फिर आप तो जानते ही होंगे क्योंकि आप तो 3 में 2 में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, मगर एक बार रिकॉल करते हैं द ब्यूटीफुल मोमेंट्स। हम अपने स्कूल्स में भी इस तरह के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बहुत सारे मनाते हैं। चलिए उनको रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं कि हम लोग कैसे अपने त्योहारों को नाम दे के और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी मना के हम त्योहारों को मनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मकर संक्रांति, देन बिहू और लोहरी, पोंगल, ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कॉमन फेस्टिवल है जो हम नाम से ही जानेंगे कि ये हमारी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। तो ये लोहरी मनाई जाती है ज्यादातर पंजाब में, और ये आग लगाई जाती है और सब लोग उसके चारों तरफ बैठ के खूब से डांस करते हैं। ये स्टेप देख के ही आप जान जाएंगे कि ये बहुत कॉमन स्टेप है, इट्स कॉल्ड द बिहू स्टेप। तो ये बिहू कहाँ मनाई जाती है? बिहू मनाई जाती है असम में। मकर संक्रांति ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और उस इलाके और 2-3 स्टेट्स में और भी मनाए जाते हैं।
जो कि ये मकर संक्रांति ऐसी पर्व है जो देश के बहुत जगहों में इक्वली हर्षोल्लास के साथ से मनाई जाती है। इसमें पतंगबाजी की बहुत मजेदार रोल होती है और ये इसलिए जाना भी जाता है। ये देख के ही आप समझ जाएंगे ये है हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पोंगल। मगर ये क्या हो रहा है? कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बन क्या रहा है, तो आप उसमें जानेंगे कि पोंगल में जो उनकी जो हलवा शॉर्ट ऑफ पाइस बोलते हैं, खीर शॉर्ट ऑफ बनती है पोंगल में स्पेशल, और वो घर में त्योहारों में जो चावल वहाँ बनाया जाता है उसी चावल से ही वो लोग खीर वगैरह बनाते हैं और ऐसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाई जाती है। इसमें सोचने की ज्यादा बात नहीं है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है पोंगल और ओनम में, ओके। मगर ओनम में क्या है कि ये बाहर में रंगोली बनाई जाती है और घर के सारे लोग मिलकर के इस पे डांस करते हैं और बहुत मजे करते हैं, और वो जो रंगोली वगैरह बनाई जाती है वो भी चावल के और जो भी उनका क्रॉप्स होता है उनको डस्ट बना करके बनाए जाते हैं। इन सारे त्योहारों में एक कॉमन चीज है, वो है मिठाई। हर घर में मिठाई तो जरूर बनती है और अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उनसे मिठाई बनती है अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल किस तरह से मनाया जाता है। और मैं और एक बात बता दूं, जो बिहू है ये असम में असम बिहू के नाम से जाना जाता है और बंगाल में ये बंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश में हर क्षेत्र में एक त्योहार मनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पंजाबी लोग ही सिर्फ लोहड़ी मनाते हैं। लोहड़ी हमारे बंगाल में या तो फिर साउथ में भी मनाया जा सकता है अगर वहाँ उस तरह की कम्युनिटी है तो। मगर देखा जाए तो होली से लेकर के ओणम तक या तो लोहड़ी से लेकर के जितनी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो सारे देश के हर एक कोने कोने में हर एक नाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है, खासकर होली। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के नाम और वो कहाँ मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। मकर संक्रांति है तो ये ज्यादातर हिंदू लोग इसको मनाते हैं, मगर ये सिर्फ बोलने की बात होती है और सीखने की बात होती है, मगर सब लोग मनाते हैं क्योंकि जो भी उसमें मिठाइयाँ बनती है, तिल के लड्डू बनते हैं, वो तो सब खाते हैं। बैसाखी ये ढोल और भांगड़ा के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ये कहाँ की, पंजाब की बहुत अच्छी फेस्टिवल्स मानी जाती है, मगर सब लोग मनाते हैं। बुद्धा ट्रेडिशन का बेस्ट फेस्टिवल जो होता है लद्दाख हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, लोहड़ी पंजाब का फेस्टिवल है। फोक फेस्टिवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जम के लोग वहाँ डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आग जलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे असम में बिहू जो लगभग एक सप्ताह तक चलते रहती है। बसंत पंचमी बंगाल में बोला जाता है जिसे हम सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं, मगर असल में ये सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है, मगर ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है जो पहला बोशाख के नाम से हम लोग मनाते हैं। वंगला सेलिब्रेशन मेघालय में असम में होता है, ठीक है। का पोंगलोंग जो होता है ये मेघालय में सेलिब्रेट होता है। नौकाई सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, ठीक है। फिर गुड़ी पावा सेलिब्रेटेड होता है महाराष्ट्र में। नबन्ना सेलिब्रेट होता है वही जो हम बोलते हैं शुभ नववर्ष वेस्ट बंगाल में। ओणम सेलिब्रेट होता है केरला में, ओके। तो इसके अलावा बाकी तो कॉमन चीजें जो आप जानते ही हैं, पोंगल जैसे तमिलनाडु में, उड़ागी सेलिब्रेट होता है आंध्र प्रदेश में, वैशु सेलिब्रेट होता है केरला और कर्नाटका में, एग्रा सेलिब्रेट होता है मुंबई में, धीर फेस्टिवल उत्तरा अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह और भी हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। अभी ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आप के लिए ओवरडोज हो जाएगा, ओके। तो चलिए इसको समराइज करते हैं और एट लास्ट बासवास के मुंह से सुनते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे फार्मिंग का काम किया अपने पापा के साथ। जैसे बासवा हेल्प करते थे अपने पापा को, तो वैसे भी हमें भी छोटे छोटे कामों में, फेस्टिवल सेलिब्रेशन में और किसी भी कामों में अपने पेरेंट्स को जरूर हेल्प करना चाहिए। The onion crafts. Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. Amma and auntie use the leech to cut the dried leaves from the top of the onions. The leech is a sharp and you have to be careful not to cut your fingers. Appa and uncle fill the sacks with onions. Appa will take
them in the truck to sell the big market. This is how our onion crops going to the market. We are very happy because we are going to celebrate our harvesting festival. So let's learn more about the tools used for the croppings and used for the cuttings of crops. Hope you all like my chapter, my written chapter, and my experience about my farm. So friends, we will meet in next chapter.